الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن کا آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے. اس سبق میں ہم کنٹینیو کریں گے صفات الحروف کو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں تجوید القرآن کے اس کورس میں ابھی تک ہم نے حروف کے مخارج کو جانا، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اور پچھلے درس سے ہم نے یہ بھی جانا کہ ہر ایک حرف کے ساتھ ایک سے زائد صفات جڑے ہوئے ہیں. انہی صفات کے بارے میں ہم ابھی جانیں گے. ہم نے یہ جانا کہ صفات جو ہے یہ صفت کی جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف میں ادا کرتے وقت اس کے ساتھ جو کیفیات، جو کوالٹیز جڑے ہوتے ہیں ان کو ہم صفات کہتے ہیں. صفات کی 2 قسمیں ہیں: صفات لازمہ جو حرف کے ساتھ کنٹینیوس اور مستقل رہتی ہے، اور صفات عارضہ جو ٹیمپوریری رہتی ہے، کسی وقت وہ کسی حرف پہ ہوتی ہے، کسی وقت وہ صفت یا وہ کوالٹی اس حرف کے ساتھ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم نے جانا کہ صفت لازمہ یعنی جو پرمنٹ صفت ہے یا پرمنٹ صفات ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں: صفات لازمہ متضادہ، ایسے پرمنٹ صفات جن میں تضاد پایا جائے یعنی اپوزٹس پائے جائے. اگر مان لیجئے کوئی حرف موٹا پڑا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حرف پتلا پڑا جائے گا، باریک پڑا جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں صفات لازمہ متضادہ. اس کے بعد ہم نے جانا تھا صفات لازمہ غیر متضادہ. یہ ایسے صفات ہیں جن کے تضاد، جن کی ضد نہیں پائی جاتی. اور صفات لازمہ غیر متضادہ کی پھر ہم نے 7 قسمیں جانی تھی. اس میں پچھلے درس میں ہم نے قلقلہ کے بارے میں جانا. قلقلہ کا مطلب کہ اپنے مخرج سے حرف کی آواز کو واپس لانا، اس کی آواز کو ایکو کرنا، ریباؤنڈ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ کرنا. یہ صفت جو ہے یہ 5 حروف پر ہوتی ہے، جبکہ یہ 5 حروف ساکن ہوتے ہیں، ان پہ سکون ہوتا ہے. ان 5 حروف کا مجموعہ جو ہے وہ ہے کتب جدن، قاف، توبہ، جیم اور دال. اس قلقلہ کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے جانا. آج کے درس میں ہم جو باقی 6 صفات ہے، جیسے تفشی ہے، استطالت ہے، صفیر ہے، لین ہے، انحراف ہے اور تقریر ہے، ان 6 صفات کے بارے میں جانیں گے. انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے اور آخر میں کچھ آیات کی تلاوت کر کے آج کا ہم درس اختتام کریں گے. تو جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ صفات حروف میں صفات متضادہ کی یہ ہمارے پاس یعنی 5 قسمیں ہیں، جن کے اپوزٹ میں اور 5 قسمیں ہوتی ہے، تو ملا کر یہ 10 قسمیں ہو گئی. اور صفات غیر متضادہ میں ہمارے پاس ٹوٹل 7 صفات ہیں. اس میں سے پچھلے درس میں ہم نے قلقلہ کو جانا. ہم نے قلقلہ کیا ہوتا ہے اس کو جانا. قلقلہ کی قسمیں ہم نے جانی: قلقلہ صغرا، قلقلہ کبرا، قلقلہ کبیرہ، کیسے ہوتا ہے، کس طرح اس کو ادا کیا جاتا ہے. آج ہم انشاءاللہ یہ جو 6 بچی یعنی باقی بچی صفات غیر متضادہ ہے، جن میں صفت صفیر، صفت لین، صفت انحراف، صفت تقریر، صفت تفشی اور صفت استطالہ، ان کو ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے یعنی صفت قلقلہ کو جانا، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹربنس. 5 حروف پر ہوتی ہے. اس کے مطابق اسٹرنگتھ کے مطابق اس کی 3 قسمیں ہیں: بہت ہی ہلکی، اسٹرانگ اور اسٹرانگسٹ. اب دوسری صفت جو ہے جس کے بارے میں آج ہم جانیں گے وہ صفت صفیر ہے. قلقلہ کے بارے میں ہم نے جانا. صفیر جو ہے یہ دوسری صفت ہے. صفیر کا مطلب ہوتا ہے وسلنگ ساؤنڈ، یعنی سیٹی کی آواز. یہ ایسی صفت ہے جن حروف پر یہ صفت ہوتی ہے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 3 ہے. کون کون حرف ہے یہ؟ زا،
सीन और सौद, ये तीनों हरूफ इनका एक ही मखरज है और उनकी एक ही सिफ्त है। सिफ्त क्या है कि जब भी ये हरूफ पढ़े जाते हैं तो आवाज जो है दांतों के बीच में निकलकर एक सीटी की आवाज या विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और ये विस्लिंग साउंड तब ज्यादा होती है जब उस हर्फ पर सुकून हो या तशदीद हो। ऐसी सिफ्त को हम कहते हैं सफीर। सफीर का असल में मतलब होता है चिड़िया की आवाज। इस्तिलाही मतलब जो है सफीर का वो ये है कि हरफ को अदा करते वक्त आवाज को सीटी की तरह यानी तेजी की मानंद पढ़ा जाता है। ये तीन हरूफ है जिन पे सफीर होती है, उन हरूफ को हरूफ सफीरिया कहते हैं। वो तीन हरूफ क्या है? एक है जा, दूसरा है सीन, तीसरा है सौद। इन तीनों का मखरज भी एक है, जबान की नोक, सनाए सुफला की जड़ या सनाए सुफला का किनारा, ये वाला नीचे वाले दांत, दांतों को बीच में आपस में मिलाना है और आवाज दांतों के बीच में से निकालनी है तेज सीटी की मानंद, विसल की मानंद। इसी को हम कहते हैं सफीर। जा सीन सौद, जा सीन सौद। सीन और सौद में यह फर्क है, सौद की आवाज को पढ़ते वक्त होंठों को गोल भी करते हैं। मिसाल देंगे, फअंज़लना, फअंज़लना, ज़ा ज़ा। आप देखिए आवाज में दांतों के दरमियान से निकाल रहा हूं तेज, इसको सफीर कहते हैं। फअंज़लना। इसी तरह सीन की मिसाल, यस्तखिरूना, यस। अब देखिए यस सीटी की तरह तेज तरार आवाज विसल की तरह निकलती है, जिसको हम सिफत सफीर कहते हैं। यस्तखिरूना। सौद की मिसाल, लसादिकूना, लसा सा। होंठ को गोल कीजिए, आवाज तेज सीटी की माना निकालिए, लसादिकूना, लसादिकूना। तो सीटी की मानद आवाज निकालने को हम सिफत सफीर कहते हैं, और इन हरूफ को जिन पे सफीर होता है उनको कहते हैं सफीरिया, हरूफ सफीरिया। ये सीन जा और सौद है, या जा सीन और सौद है, और इन पे सफीर जो है तेज हो जाती है जब इन हरूफ पर सुकून हो या इन हरूफ पर तशदीद हो। इसके बाद जो तीसरी सिफ्त है जो गैर मुतजादा में है, वो है सिफत लीन। लीन का आम माने है सॉफ्टनेस, नरमी, मलायम आवाज बनाना, नरमी आवाज में लाना, आवाज में मलामियत यानी मलाइमियत जिसको कहते हैं ना, नरम करना, सॉफ्ट करना। इस सॉफ्टनेस को हम कहते हैं लीन, सिफत लीन। और लीन क्या है? लीन जो है सिफत लीन, ये या साकिन माकबल जबर या वाव साकिन माकबल जबर जब भी आप देखेंगे तो बतदरीज इसको या लीन कहेंगे, इसको वाव लीन कहेंगे। ठीक है, कैसे अदा किया जाता है? काइफा, उर्दू में हम पढ़ते हैं कैफा, कैफ। अरबी में पढ़ते हैं काइफा, काइफा, कैफा नहीं। इसी तरह उर्दू में पढ़ते हैं कौम, है ना। अरबी में पढ़ते हैं काऊ का, काऊ, काऊ। अब देखिए वाव की आवाज को मैं मलायम तरीके से, नरमी के साथ, सॉफ्टनेस के साथ अदा कर रहा हूं। काऊ का, काऊ। उर्दू में हम पढ़ते हैं ना कौम, अरबी में पढ़ते हैं काऊ, कौम नहीं, काऊ। ठीक है। इसी तरह उर्दू में अगर हम पढ़ते हैं कैफ, अरबी में पढ़ते हैं काइफ, काइफ। आप देखिए या की आवाज मलायम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि क्या या साकिन माकबल जबर है और वाव साकिन माकबल जबर है। इन दो सूरतों में इसको हम कहते हैं सॉफ्टनेस, या इसको कहते हैं यालीन, इसको कहते हैं वावलीन। तो लीन भी एक सिफ्त है, वाव साकिन माकबल जबर, या साकिन माकबल जबर, और जब भी इस कंडीशन में आते हैं तो इनकी आवाज मलायम या नरम होती है। इसी तरह साइला, इलाइका, इलाइका नहीं, इलाइका। इसी तरह तराउहा, तराउ, तरो नहीं, तराउ, राउ। अब देखिए सॉफ्टनेस आवाज में।
इसी तरह फलौला, लोला नहीं, फलोला नहीं, लौला, फलौला। इसी तरह फ़अयनमा, एनमा नहीं, आई, फ़अयनमा। इसी तरह लिक़ौमिन, कौम नहीं होता, कौम, कौमिन। इसी तरह आइनन, ऐनन नहीं, आइनन। इसी तरह रअयता, रअयता नहीं, रअई, आई। ये जो साउंड है ना, जिस तरह मैं अदा कर रहा हूं, इसी को लीन कहते हैं। इसी तरह कायदी, अताओ का, अताओ का नहीं, तू का नहीं, अताओ का, ताओ। ये जो मलाइम में आवाज निकाल रहा हूं, सॉफ्ट कर रहा हूं, इसको कहते हैं वाव या यालीन। लीन के बाद एक और सिफ्त है, सिफत गैर मुतजादा मुस्तकिल में, वो है सिफत तफशी। और तफशी जो है, इसका आम मतलब होता है फैलना, आवाज को फैलना, आवाज का फैलना, यानी आवाज जो है काफी फैल जाती है। ठीक है, आवाज फैल जाती है, इसको कहते हैं तफशी। तफशी जो है, यानी आवाज जो है वो हवा में फैल जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। और सिफत तफशी जो है, ये सिर्फ शीन पर होती है अदा, शीन। आप देखिए ना, किसी भी बच्चे को घर में अगर किसी को खामोश करना हो, तो हम उसको श की आवाज निकाल रहे हैं, क्योंकि शीन की आवाज जो है, ये हवा में जाके फैलती है। ठीक है, इसकी आवाज ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, फैल जाती है। इसीलिए इस सिफ्त को कहते हैं तफशी। तफशी का मतलब होता है स्प्रेडिंग, प्रोमिनेंट तरीके से स्प्रेड होना, आवाज का फैलना। और ये जो सिफ्त है, ये शीन पे होती है। याद रखिएगा, कोई भी सिफ्त इस हर्फ पर ज्यादा वाज़ेह होता है जब वो हर्फ साकिन होगा, खुसूसन जब उस हर्फ में तशदीद होगा, उस वक्त वो हर्फ जो है वो ज्यादा स्प्रेड होगा, या उसमें ज्यादती पैदा हो जाएगी। ये चीज भी आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी सिफ्त नॉर्मल तरीके से अदा होती है, बट अगर उस हर्फ पर तशदीद होगा या वो हर्फ साकिन होगा, तो उस सिफ्त में प्रोमिनेंस आ जाती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, वो सिफ्त और मजबूती के साथ पेश आती है। अब कुरान मजीद की एक आयत है, सूरत है, बल्कि सूरतुल इनशरह या सूरतुल शरह, इसमें जो शीन आया है, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह थोड़ा देर के बाद, ताकि हम बाकी सिफात भी पढ़े। उसके बाद हम जितने भी यानी कुरान की आयतें होंगी, सूरतें होंगी, उनको पढ़ेंगे, और आज जो हमने सिफात पढ़े हैं उनकी मश्क करेंगे। तफशी के बाद एक और सिफ्त है गैर मुतजादा में, इसको कहते हैं इनहिराफ, सिफत इनहिराफ। इनहिराफ का मतलब ये होता है कि हर्फ पढ़ते पढ़ते दूसरे हर्फ में तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर रा और लाम, ठीक है, जैसे आम हालत में अगर आप किसी छोटे बच्चे को कहेंगे कि रोटी ले आओ, तो रोटी को वो लोटी कहता है, लोटी, क्योंकि लाम और रा की जो आवाज है, ये एक दूसरे में फिसल जाती है, एक दूसरे में ये ड्रिफ्ट हो जाती है, जिसको हम अरबी में इनहिराफ कहते हैं। तो याद रखना चाहिए, ये सिर्फ इसमें लॉजिकली है, इसमें पाई जाती है, हुरूफ में पाई जाती है, मगर हमें याद रखना है कि इस चीज को हमें अवॉइड करना है, इस सिफ्त को हमें अवॉइड करना है। नून को लाम की तरफ निस्बत है, कुर्बत है, इसी तरह लाम को रा की तरफ कुर्बत है, ड्रिफ्ट आवाज हो जाती है। हमें ख्याल रखना है कि ये जो सिफ्त है, इसको हमें अवॉइड करना है। इस सिफ्त को कहते हैं इनहिराफ। बचपन में या जो आम लोग जिनको यानी एक्सेंट का कुछ ख्याल नहीं रहता, तो वो कभी कभी रा के बजाय लाम पढ़ते हैं, लाम के बजाय रा पढ़ते हैं। जैसे मैंने मिसाल दिया, रोटी को लोटी कहते हैं, लोटी को रोटी कहते हैं। बच्चे के अंदर ये चूंकि फिसलन ज्यादा होती है, ड्रिफ्टिंग ज्यादा होती है, अभी कमांड नहीं होता अपने यानी वोकल कॉर्ड्स में, दैट्स वाई उनके बीच में ये ड्रिफ्टिंग, ये इनहिराफ ज्यादा होता है। ये एक सिफ्त है, नेचुरली एक सिफ्त है, मगर इस सिफ्त से हमें बचना चाहिए। और ये सिफ्त उस वक्त ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है जब रा या लाम
साकिन होता है या नून या लाम साकिन होता है, वो लगता है ये एक दूसरे में ड्रिफ्ट हो गए। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, ये ड्रिफ्टिंग से हमें बचना है। उसके बाद सिफ्त नंबर 6 हमारे पास गैर मुतज़ादा में यह है सिफत तकरीर या सिफत तकरार। दोनों नाम इसके सही है। तकरार और तकरीर का मतलब ये होता है कि जब भी इस हर्फ को पढ़ा जाए जिस पे सिफ्त हो जाती है, उस हर्फ में लकनत या रिपीटिशन पैदा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर रा, हर्फ रा को पढ़ते वक्त आप देखें ट्रैक्टर की तरह हर्फ में या आवाज में या हमारे मुंह में यानी फिसलन हो जाती है, रिपीटिशन हो जाती है, या जुबान का जो हिस्सा है वो थ्रिल होता है। थ्रिल का मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है। अर रहमान, अर अर पढ़ रहा है ना, मगर इसमें भी आपको ये याद रखना है कि इसमें भी खूबसूरती तभी है जब ये थोड़ा कम किया जाए। अगर ये और प्रोमिनेंट हो जाता है तो हर्फ में खूबसूरती मिट जाती है। ये सिर्फ एक हर्फ में होती है, वो है रा, अर रहमान। ठीक है, रहीम, अर रहीम। थोड़ा सा ये तकरार होना चाहिए, मगर अगर ये ज्यादा हो जाता है तो उस हर्फ की जो खूबसूरती है, उसका जो हुस्न है, वो भी खत्म हो जाता है। आखिरी सिफ्त इस कैटेगरी में, इसको कहते हैं सिफत इस्तिताला। सिफत इस्तिताला का मतलब होता है हर्फ को लंबा करना, खींचना, हर्फ को लंबा करना, उसकी आवाज, उसकी लेंथनिंग को बढ़ाना। और ये सिर्फ हर्फ लाद की है। लाद, देखिए दाद जो है ये बाकी हरूफ के मुकाबले में सबसे लंबा हर्फ है। क्यों? अगर बाकी हर्फ पढ़ने में हमें 1 सेकंड लगता है, दाद को पढ़ते वक्त हमें 1.5 सेकंड लगता है। क्योंकि इसका जो मखरज है वो जबान की करवट को हमें तवाहिन की जड़ तक, ऊपर वाले जो हमारे पास दाढ़ियां हैं ना, उनके साथ मिलाना है। और जो हमारा मुंह है वो टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि यह या तो दाईं जानिब अदा होता है या बाईं जानिब अदा होता है। दोनों तरफ से जुबान की करवट ऊपर की तरफ नहीं उठ जाती। जैसे वाद, आप मेरी मुंह की तरफ देखिए, वाद। तो ये लंबा करना हर्फ को, ये सिफत इस्तिताला कहलाता है। ये हर्फ दाद की सिफत है, दाद। ये दाद नहीं है, ये वाद है, वाद। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जबान की करवट, यानी जबान का जो एक किनारा है, पूरे के पूरे किनारे को ऊपर के जो हमारे पास अदरास है, जिनको हम दाढ़ियां कहते हैं, कश्मीरी में जिनको अड़म कहते हैं, वहां तक आपको ले जाना है। उनके किनारे, बल्कि उनका जो जड़ है वहां तक ले जाना है। और एक ही साइड में, या चाहे आप लेफ्ट ले या राइट ले, तो होंठ जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है अदा करते वक्त। इस सिफ्त को इस सिफत इस्तिताला कहते, इस्तिताला। देखिए ये तमाम सिफात जो है ये मुस्तकिलन हम किसी न किसी तरीके से अदा कर ही रहे, यानी इनको अदा करने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। सिर्फ कलकला ऐसा सिफ्त है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, ताकि ये सिफ्त बाकी हरूफ पे हम करते हैं जबकि उनमें नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको तफसील उसकी दी थी। बाकी जो सिफत सफ़ीर है, तेजी की तरह जीन, सा, जा, सीन और स्वाद को अदा करना, या जो सिफत लीन है, हर्फ को मुलायम बनाना, या सिफत तफशी है, आवाज को फैलाना, हर्फ शीन पे होता है, या सिफत इनहिराफ से बचना चाहिए जिसमें लाम और रा आपस में मिल जाता है, सिफत तकरीर या सिफत तकरार जो रा में होता है, और सिफत इस्तिताला जो दाद में होता है। ये हमारे पास 6 के 6 सिफात, गैर मुतजादा परमानेंट सिफात हमारे पास आ गए। इनको आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर इनका नाम लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका नाम अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में माने भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलकला का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, सफीर का मतलब होता है विस्लिंग साउंड, आवाज तेजी की तरह निकालना, लीन का मतलब होता है सॉफ्टनेस, तफशी का मतलब होता है स्प्रेडिंग, आवाज को फैलाना, इनहिराफ का मतलब होता है ड्रिफ्ट होना, एक हरफ दूसरे में तब्दील होना, और तकरार या तकरीर जो सिफ्त है,
اس کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹشن، یعنی جلدی جلدی وائبریشن کی طرح ہونا، اور استطالہ کا مطلب ہوتا ہے لینتھننگ۔ یہاں ڈیفینیشن دیا گیا ہے، یہاں ان حروف کا لسٹ دیا گیا ہے جن حروف پہ یہ ہوتا ہے۔ مثال قطبی جد کے 5 حروف جو ہے انہی پہ قلقلہ ہوتا ہے جب یہ سکون میں ہوں گے۔ اسی طرح صفیر زا سین اور صاد پہ ہوتا ہے۔ لین جو ہے واو ساکن ماقبل زبر، یا ساکن ماقبل زبر تب ہوتا ہے۔ شین پہ تفشی ہوتی ہے۔ انحراف جس سے ہمیں بچنا ہے، یہ جو قریب قریب حروف ہے جیسے لام اور را، نون اور لام، ان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ صفت تکرار یا تقریر صرف حرف را پہ ہوتا ہے۔ صفت استطالہ داد پہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیا گیا ہے کہ اسٹرنگتھ ہمیں کتنی کرنی ہے۔ قطب جد کرنا ہوتا ہے، صفیر میں بھی کرنا ہوتا ہے، لین میں سافٹنس دکھانی ہے، تفشی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، انحراف اسٹرانگ ہوتا ہے مگر اوائڈ کرنا پڑتا ہے، تکرار بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور استطالہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ یہ جو یہاں پر سائنس دیے گئے، سائنس کا مطلب کہ ان صورتوں میں یہ صفات زیادہ واضح، زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم قرآن مجید کی صورتیں پڑھیں گے جس میں ہم ان جو صفات ہے پلس جو ہمارے پاس مخارج ابھی تک پڑھے ہیں ان کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آج ہم پڑھتے وقت کچھ مخارج یا کچھ صفات کے بارے میں بھی یعنی آپ سے پوچھ گچھ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ جی شوکت صاحب آپ اس کو پڑھے سورہ انشراح کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لك صدرك، صادرک، علم نشرح لك صدرك شاباش۔ ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا، نون کے ساتھ الف بھی ہے نا، لمبا کیجئے، ووضعنا، ووضعنا عنك وزرك، وز، زا کو تیز پڑھیے، وز رک، وزرك رک نہیں رک، ٹھیک ہے بعد میں اس کو پڑھیں گے۔ جو صفات ابھی ہم نے نہیں پڑھے ہیں میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، مگر جو صفات ہم نے پڑھے یا جو مخارج پڑھے ان میں آپ سے مطلب پوچھ گچھ کروں گا انشاءاللہ۔ آگے بڑھے۔ الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، دال جو ہے نا حرف دال، اس کو نرم پڑھیے، رک رک۔ اب کیسے نرم پڑھیں گے؟ یہ جو زبان کی نوک ہے نا، اس کو اوپر والے جو آپ کے سامنے والے دانت ہیں نا ان کے ساتھ ملائیے، رک رک، رک، نرم پڑھیے، رک رک۔ ورفعنا لك ذكرك شاباش، فإن مع العسر يسرا، شاباش، إن مع العسر يسرا شاباش۔ فإذا فرغت فانصب، صاب، باپ کلکلا، صاب، باپ کلکلا، فإذا فرغت فانصب شاباش۔ وإلى ربك فارغب۔ غاب، صحیح، ویری گڈ۔ الطاف صاحب آپ پڑھیں گے اس صورت کو؟ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम तो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صادرك وصدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب. देखिए फ़इज़ा फ़रग़्त, गैन पे कलकला नहीं होता, गैन पे आवाज रोकनी है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, बा पे कलकला होगा। ठीक है, आप शायद पिछले दर्स में नहीं थे तो आपको मैं बताता चलूं कि कलकला जो सिफ्त है ना, यहाँ ऊपर आप देखिए पहली सिफ्त, ये सिर्फ इन 5 हरूफ पे होती है जिनका मजमुआ कुतुब जद्दिन है, क़ाफ तौ बा जीम और दाल। इन हरूफ में से कोई हर्फ साकिन होगा तभी कलकला होगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर सब सब सब, क्योंकि बा जो है ये इन 5 हरूफ में शामिल है, क़ाफ तौ बा जीम और दाल। अब देखिए गैन जो है ये नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे फरग़्त, आवाज को रोकेंगे, फरग़्त फरग़्त। हाँ, क्या पढ़ेंगे? फरग़, आवाज को रोकिए, फरग़्त। हाँ, फिर आगे बढ़े, फंसब, सब आवाज, बाकी आवाज को वापस लाइए, सब के बजाय सब सब फन 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 सब जी, फन फन सब फन नहीं है, फन है क्योंकि अलिफ नहीं है। हम ये जो अलिफ यहाँ पर है ना इसको पढ़ा नहीं जाएगा, फा की आवाज नून के साथ मिलाएंगे तो पढ़ेंगे फन सब। ये जो अभी मैं बीच में कुछ आवाजें निकाल रहा हूँ ना, ये चूंकि हमने पढ़ी नहीं है इसीलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन पे अभी तवज्जो दे रहा हूँ जो हमने पढ़ा। जैसे मैंने अभी शौकत साहब को बताया कि दाल पढ़ते वक्त नरम पढ़े, और पढ़ने का तरीका मैंने बताया। इसके बरक्स में हमारे पास है जा, जिसको अभी हमने पढ़ा यहाँ पर सफीर पढ़ा, सफीर जा को तेज पढ़ा जाता है, राल को नरम पढ़ा जाता है। मान लीजिए आप हर्फ का मखरज या उसकी सिफ्त याद नहीं रख रहे हैं, बस आप इतना भी अगर आप याद रखेंगे कि राल जो है, जिसको उर्दू में हम राल कहते हैं, इसको नरम पढ़ा जाता है। और नरम कैसे पढ़ा जाता है? जबान की जो नोक है ना, ऊपर वाले जो दांत है सनाए उलिया, उनके किनारा जो तेज हिस्सा है ना उसके साथ मिलाइए, ये खुद ब खुद नरम हो जाएगा। जैसे राल, इज़ा, इज़ा, इज़ा या इज़ पढ़िए, इज़ ये खुद ब खुद नरम हो जाएगा, इज़। इसके बरक्स में हम जा पढ़ेंगे, जा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक जा की मिसाल आएगी, विज, विज रॉक, जरा पढ़िए, विज रॉक, यस, हाँ विज, जा को तेज पढ़िए, राल को नरम पढ़ेंगे, जा को तेज पढ़ेंगे। इसी तरह हमजा की आवाज नॉर्मल आएगी, मगर आइन की आवाज जो है उसको हलक से निकालना है, हलक के दरमियानी हिस्से से। जैसे इसको पढ़ेंगे आइन की आवाज, आइन की आवाज वस्त हलक, यानी दरमियाना जो हमारे पास गले का हिस्सा है वहां से अदा करना है। जरा इसको पढ़िए, दा नहीं है, दा ये आइन की आवाज है। आइन का जो मखरज है ना, ये गले का बीच वाला हिस्सा है। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर इसको वावा, जैसे हम आम नमाज आप आम तरीके से पढ़ते हैं ना, वावा दाना, दाना नहीं है, ये वावा दा आइन पढ़ते हैं, आइन वावा दाना। ठीक है, थोड़ा मेहनत के बाद कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास है आइन का, इसमें भी आइन है, हमजा नहीं है। ठीक, अन का नहीं है, या अन का। शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं है, मैं माइक को थोड़ा करीब रख रहा हूँ। आइन जो है ये वस्त हलक, यानी गले का जो दरमियानी हिस्सा है ना वहां से अदा होता है। सबसे टफ हर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम जो बरसगीर के लोग हैं, हमारी चूंकि जबान तो अरबी है नहीं, इसीलिए पढ़ना थोड़ा टफ है। इसको मैं समझ लेता हूँ, अगर आप पहली दफा तजवीज समझ रहे हैं
اس میں یعنی پریکٹس کی ضرورت ہے مگر انشاءاللہ ہو جائے. اچھا اس کے بعد اب دوسرا صورت ہے, اس کو آپ پڑھیے پہلے. شوکت صاحب آپ پڑھیے اس کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جو ہیم پڑھ رہے ہیں نا, ہیم اصل میں اب آپ کو تھوڑی سی محنت کر, جیسے عین کی مشق میں کرا رہا تھا الطاف صاحب کو, ایسی ہا کی مشق ہے. یہ کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیم حیم, ہیم نہیں حیم, یہ ہا ہے, ٹھیک ہے نا, گول ہا نہیں, یہ ہا ہے, بڑا ہا. چلو. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وہی رکیے, یہ مجھے بتائیے, ہم نے پڑھا علم ترى کیف, کیف, یہ جو یا ساکن ما قبل زبر ہے, یہ کون سی صفت ہے؟ یہ لین لین ہے. یا شاباش, یہ اب آپ کو یاد رکھنا ہے, جب بھی یا ساکن ما قبل زبر ہو تو یا لین ہے. جب بھی آپ اب یہ پڑھیں گے, اب آپ کو پتا, یہ کیفا نہیں پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے کیف. کیف یعنی تھوڑا ملائم کر کے آواز کو بڑا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لیرکل ادا کرنا ہے, اس کی آواز کو اور ملائم بنانا, نرم بنانا. شاباش, آپ پڑھیے اس آیت کو پھر سے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اس پڑھیے پھر سے. بأصحاب الفيل. بأصحاب الحا سے, اصحاب, ذرا پڑھیے بأصحاب بأصحاب الفيل. شاباش. ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليه. تھوڑا فی الحال آپ ہر آیت پہ رکیے. مثال فی تضلیل آپ نے پڑھا, صحیح پڑھا, مگر آپ ابھی آپ پھر فی الحال رکیے, جہاں بھی آیت ملے وہاں رکیے. تو جب آپ رکیں گے تو پڑھیں گے فی تضلیل. اس آیت کو دوبارہ پڑھیے, دوسری آیت کو. ألم يجعل قيدهم في تضليل. ایک آیت, ایک چیز تو مجھے یہ بتائیے, یہ جو جیم پہ آپ نے کچھ کیا یجعل میں, یہ کیا کیا آپ نے جیم پر؟ يجعل. یج کیا پڑھا جیم پہ جی آپ سر. نے؟ کون سی صفت آپ نے جیم پہ ادا کی؟ ألم يجعل. پڑھا تو صحیح آپ نے, مگر صفت کیا ادا کی پتہ بھی ہونا چاہیے نا, آپ نے کیسے پڑھا؟ یجعل, جیم پہ کون سی صفت آپ نے ادا کی؟ الطاف صاحب آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سی صفت ہے جو انہوں نے جیم پر ادا کی؟ I think یہ لین ہے نا. نہیں, یہ قلقلہ ہے, قلقلہ ہے, ٹھیک ہے. اس لیکچر کو بعد میں آپ دیکھیے گا, ان کے نوٹس آپ بنائیے گا. یہ دیکھیے جیم جو ہے یہ قطبی جد میں ہے, اس پہ سکون ہے. انہوں نے صحیح پڑھا, آپ شوکت صاحب آپ نے صحیح پڑھا, مگر اب آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں. جیسے گاڑی چلانے والے کو پتا ہے نا میں کس گیئر میں ہوں, تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے آپ نے صحیح پڑھا یجعل صحیح, مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے یج کیوں پڑھا, یہ قلقلہ ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری ایک غلطی آپ سے جو بار بار ہو جاتی ہے وہ یہی کہ جب آپ فا پڑھتے ہیں نا, فا پھے نہیں فا, اس کو آپ ہونٹوں کو ملاتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے, کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں. ذرا اس کو فی کو پڑھیے. ہاں پڑھیے, دوسری آیت کو پھر سے پڑھیے. یہ علم, دوسرا والا ہے. جی دوسری آیت, علم ألم یجعل. يجعل قيدهم في. پڑھیے نا. ألم يجعل قيدهم في تضليل. آپ فا کو صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے. فا کا مخرج, شوکت صاحب فا کا جو مخرج ہے نا, آپ شیشہ سامنے رکھیے, پھر آپ فا جب پڑھ رہے ہیں نا آپ ہونٹوں کو ملا رہے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اوپر کے دان نیچے کے ہونٹ. فی, یہ فی نہیں ہے, یہ فی ہے. فی دیکھیں نا میری دانت کلیئر ہے. فی فی, ذرا پڑھیے. ہاں ألم يجعل قيدهم في. چلے آگے بڑھے, پریکٹس کرنی ہے اس پہ.
शाबाश। وأرسل عليهم طير أبابيل. طائرن, शाबाश। अब कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, जो गलती हुई कोई मसला नहीं, आगे बढ़े, आप गलती के साथ आगे गलती ना करें। طائرن अबाबील, शाबाश। وأرسل عليهم طيرا أبابيل शाबाश। ترميهم بحجارة من سجيل. بحجارة من سجيل, शाबाश। ترميهم بحجارة बिहिज, من سجيل. बिहिज क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये सिंपल है, बिहिजारतिम, हिजारतिम। حجارة. आप पढ़ रहे हैं बिहिजारतिम, जीम पे कोई तशदीद नहीं है। तरमीहिम बिहिजारतिम, शाबाश। ترميهم بحجارة من سجيل शाबाश, शाबाश। فجعلهم كعصف مأكول. फज नहीं, كعصف. फिर से पढ़े, फा, فجعلهم फजाअलहुम, सही, फजाअलहुम। فجعلهم كعصف مأكول. फिर से एक फा में गलती है, कास, कास, كعصف. फिम नहीं भाई साहब, फिम, फा, कास, फिम फा, फिम, फिर मकबूल है मीम की तशरीह, ठीक है। थोड़ा फा पे आप मेहनत कीजिएगा। अल्ताफ साहब आप सूरत को पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। फ़अला, अलम फ़अला, फ़अला, फअल सिंपल। फ़अला मतलब कैसे किया काम, फ़अला, उसने काम किया, फअल जी। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील सही, वेरी गुड। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील सही, वेरी गुड। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील शाबाश। फजअलहुम कसफिम माकूल। माँ के बजाय पढ़ना है मा, क्योंकि मीम के साथ जो अलिफ है ना, ये अलिफ नहीं, ये हमजा है। और कानून ये है, जब अलिफ शक्ल में या हमजा शक्ल में उसके ऊपर जज्म होगा तो उस पे झटका होगा। झटके का मतलब होता है आवाज को रोकना। माकूल, क्या पढ़ेंगे? माकूल। जज़ाकल्लाह खैर। इस तरह आज का हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। شكرا.